Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD question of 13 February first shift of GKGS portion in इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 13 फरवरी यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीकेजीएस पोर्शन से रहने वाला इंग्लिश मीडियम में रहने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो गया है, बाकी सभी दिनों का सभी शिफ्टों का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर हरियाणा ऑप्शन में दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस हरियाणा हैड द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। देयर वर 834 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन हरियाणा। सम मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर ले तो द रेशियो ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर इज कॉल्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो। इन द 2001 census India's child sex ratio was 927. In the 2011 census India child sex ratio was 919. According to 2011 census Mizoram had the highest child sex ratio. Mizoram had 971 females per 1000 males. Andaman and Nicobar Island had the highest child sex ratio any Indian Union territories, and Andaman and Nicobar Iceland had 968 females per 1000 males. Sex ratio is an important source to identify the female population in the India. Kerala had the highest sex ratio in India. Kerala had 184 females per 1000 males. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड। तो आपका 1911 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल वर पार्टीशन इन 1905. इट वाज partitioned by Lord Curzon. The partition was announced on 20 July 1905. The partition of Bengal came into effect on 16 October 1905. The partition of Bengal was a part of British policy of divide and rule India. The Swadeshi movement was one of the main protests against the partition of Bengal. And the partition of Bengal was annulled in 1911. So friends, before proceeding in the video, let me tell you friends that the notes of SSC GD have been prepared by me and my team. In the PDF you get SSC GD 2022 question with extra facts and SSC GD 2024 question with extra facts and SSC GD 2025 ongoing PDF plus 40 topic static GK ebook which are based on SSC exam, and daily 50 question GK GS Qs based on SSC exam which is conducted are on our Telegram channel daily at 9 PM. If you guys want to join it, then you can message me on WhatsApp number and by direct link in description box, and you can see the demo of PDF and Qs which is conducted daily on Telegram channel. If you want to buy this, you can me on WhatsApp number. Apart from this, those who want to demo, you can also see there. So friends, let's move ahead to next question. Under which article of the Indian Constitution the Prime Minister is the head of the Council of Minister? तो आपका आर्टिकल 74 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 74(1) स्टेट दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the Prime Minister as its head to aid and advise the President who in the exercise of his functions shall act in accordance with the such advice. Therefore, Article 74 establishes the Council of Ministers with the Prime Minister as its head, and the Prime Minister advises the President who in the exercise of his function acts in the accordance with that advice. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो कथक अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। कथक की बात कर लें जो कि नॉर्थ इंडिया का आपका क्लासिकल डांस है। कथक इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस विच डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी। इन द पास्ट कथक डांसर यूज टू परफॉर्म द स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण इन द नटवारी स्टाइल। घरानाज की बात कर ले, घरानाज ऑफ कथक इज इट्स गोल्डन एज इन द 19th century अंडर द patronage of Wahid Ali Shah, the last Nawab of Awadh. He founded the Lucknow Gharana, which emphasizes the expression of bhav, moods and emotions. वहीं बात कर ले आपका जयपुर घराना की, विच इज नॉन फॉर इट्स रिदम। द बनारस घराना आर अदर मेजर स्टाइल ऑफ कथक dance. Today, Kathak has emerged as the distinctive dance form that represents a unique synthesis of Hindu and Muslim art. It is only classical dance of India that has connection with Muslim culture. Kathak is only classical dance that culminates in Hindustani or North India music. Some of the famous exponents of the dance form are Minika, Sitara Devi and Birju Maharaj. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2024। तो मिस्टर पीयूष गोयल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आया था कि व्हाट इज द मीन बाय डिफिस बजट। तो डिफिस बजट की बात कर ले, रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन आर मोर देन इट्स इनकम. This means that the government or organization had to borrow to meet its expenses. This situation arises when the total income of government, such as revenue from taxes, is less than its total expenses. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच फील्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार गिवन। तो इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक आर्ट्स एंड थिएटर द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां Yuva Puruskar was started in year 2006. This award is given by the Sangeet Nat Academy to those artists who have excelled in the field of theatre, music and dance under the age of 40. वहीं बात कर ले, the chairman of the Sangeet Nat Academy gives the prize money of 25,000 to the winner. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर द द्रोणाचार्य अवार्ड इस्टेब्लिश। तो 1985 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। The Dronacharya Award established in 1985 for outstanding coaches in the sports and game is the sport coaching honor of the Republic of India. The award is named after Drona, often called Dronacharya or Guru Drona, a character from Sanskrit epic Mahabharata of the ancient India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गोपात ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ विच वेदा। तो अर्थवेदा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट ISSF वर्ल्ड कप 2024। तो 6 मेडल जो कि जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2024 कैरियो मेडलिस्ट फॉर इंडिया दिव्यांश सी पनवार जो कि आपका गोल्ड मेडल जीते थे इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल। वहीं बात कर ले रिथम संगवान यानी उज्ज्वल मलिक जो कि गोल्ड मेडल जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। वहीं बात कर ले आपका सोनम उत्तम मास्कर जो कि सिल्वर मेडल जीते थे इन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में। अर्जुन बहुता जो कि सोनम उत्तम मास्कर के नाम से भी जाने जाते हैं, सिल्वर मेडल जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में। वहीं आपका अनुराधा देवी जो कि सिल्वर मेडल जीते थे इन वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में। अखिल श्योरन जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मेंस 50 मीटर राइफल इन 3 पोजीशन। इंडिया शूटिंग कंटिनेंट इंडेड देयर कैंपिंग एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इन बाकू अजेरबैजान विथ 14 मेडल, 6 गोल्ड एंड 8 ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Government of India Act 1935 was passed by the British Parliament in the August 1935 with 321 sections and 10 schedule. It was the longest act ever passed by the British Parliament and was later split into 2 parts, Government of India Act 1935 and Government of Burma Act 1935. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि आपका हो गया था
इन विच फील्ड इज द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार गिवन? तो इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ड्रामा, डांस, फोक आर्ट एंड थिएटर। तो चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं आपका अदर नोटेबल अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र जो कि आपका हाईएस्ट वार गैलेंट्री अवार्ड जो कि आपका दिया जाता है। अशोका चक्र जो कि आपका हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के लिए दिया जाता है। वहीं भारत रत्न आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये सभी इंपॉर्टेंस रहते हैं आपका जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं पद्म भूषण की बात कर ले तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री जो कि आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म के लिए दिया जाता है। वहीं अर्जुन अवार्ड जो कि आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स कोच के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद्र अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भारत अवार्ड जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं व्यास सम्मान जो कि आपका लिटरेसी वर्क में दिया जाता है। वहीं सरस्वती सम्मान जो कि आपका लिटरेटिव वर्क में ही दिया जाता है। वहीं ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो ये रहे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट यानी 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन जीके जीएस के। बाकी और भी जो 4-5 क्वेश्चन छूट गए उन्हें हम जो कि पीडीएफ में आपका शामिल कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका पीडीएफ जो कि डेली शिफ्टों में जो कि अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप SSCGD 2025 का ऑनगोइंग पीडीएफ जो कि कंबाइंड पीडीएफ खरीदना चाहते हैं एक ही पीडीएफ में तो आप लोग बाई कर सकते हैं जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है। तो वहाँ से भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से मैसेज करके आप लोग बाई कर सकते हैं कंपाइलेशन आपका पीडीएफ। तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।